بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس سے پہلے والا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے ایکسرسائز 1.1 کا کویسچن نمبر 3 تک سالو کیا تھا. تو آج ہم اس کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں کویسچن نمبر 4 سے. یہ پورے سوال اس کے 9 ہیں اس ایکسرسائز کے. تو 1 بائی 1 کر کے ہم سارے سوال اس کے سالو کریں گے. تو اب کویسچن نمبر 4 سے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. میں ہوں محمد شاہد خان ایجوکیشنل اکیڈمی. تو پہلے اس کی سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں. سٹیٹمنٹ میں اس نے کہا ہے کویسچن نمبر 4 میں اور that belongs to complex number so that z plus z conjugate divided by 2 is equal to a real number. تو ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ یہ جو ویلیو ہے z پلس زیڈ بار ڈیوائڈیڈ بائی 2، اس کا جو آنسر ہے نا وہ ریئل نمبر آئے گا. تو ہم اگر کمپلیکس نمبر کو پہلے آلریڈی ہم ڈیفائن کر چکے ہیں اور دوبارہ اس کو ہم لکھتے ہیں کہ اگر z جو ہے وہ a پلس ایوٹا b ہے تو تب جو a جو ہے وہ اس کا ریئل پارٹ ہے. دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو آنسر ہے وہ اے آنا چاہیے. تو اس کو سولو کرتے ہیں. زیڈ کیونکہ اے پلس ایوٹا بھی ہے تو زیڈ بار جو ہے وہ اے مائنس ایوٹا بھی ہو جائے گا، یعنی کہ اس کا کانجوگیٹ لے لیں گے. تو یہ آپ کا زیڈ بار ہے. اب ہم ان دونوں کو ایڈ کرتے ہیں اور 2 سے ڈیوائڈ کرتے ہیں، یعنی جو ہماری گیون ویلیو ہے اس کو سولو کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو ویلیو ہے اس میں زیڈ کی ویلیو ہے اے پلس ایوٹا بی اور زیڈ بار کی ویلیو بن گئی ہے اے مائنس ایوٹا بی اور ڈیوائڈیڈ بائی 2. تو اس کو سولو کرتے ہیں. آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ ریئل جو ہے وہ ریئل میں ایڈ ہوتا ہے اور جو امیجنری ہے وہ امیجنری میں ایڈ ہوتا ہے. تو اس کیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ پلس ایوٹا اور مائنس ایوٹا بی والی جو ویلیو ہیں وہ کینسل ہو جائیں گی اور اس طرح 2a ڈیوائڈیڈ بائی 2 آئے گا، یعنی کہ یہ 2 آ گیا. 2 ڈیوائڈیڈ بائی 2 یہ کینسل ہو گیا اور a آپ کے پاس آ گیا. تو اس سے ثابت کیا ہوا جو کہ یہ جو a آیا ہے یہ ہمارا ریئل پارٹ آف زیڈ ہے. تو یہی ہم نے سولو کرنا تھا. اس کے بعد اس کا سیکنڈ پارٹ ہے، اس میں آپ کو دوسری ویلیو دی گئی ہے اور اس میں بھی اس کو کہا گیا ہے کہ یہ جو ویلیو ہم اب سولو کریں گے یہ بھی اس کا جو آنسر ہے وہ امیجنری پارٹ آف زیڈ ہوگا. امیجنری پارٹ. تو آلریڈی ڈیفائن کر چکے ہیں، زیڈ ہے اے پلس ایوٹا بی اور پھر یہ مائنس کا سائن اور یہ مائنس ایوٹا بی ڈیوائڈیڈ بائی 2. تو اے پلس ایوٹا بی، اب یہ مائنس اندر ملٹیپلائی ہو جائے گا، یہ اندر والے جو سائن ہیں یہ چینج ہو جائیں گے، یہ مائنس اے ہو جائے گا اور یہ پلس کا ایوٹا بی ہو جائے گا. اس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہمارا بی کینسل ہوا تھا، اس دفعہ اے کینسل ہو رہا ہے. تو اس طرح یہ 2 ایوٹا بی ڈیوائڈیڈ بائی 2 آ جاتا ہے. تو یہ آپ کا آنسر آیا ہے ایوٹا بی. یہ ظاہر کیا کر رہا ہے کہ یہ امیجنری پارٹ ہے. ایوٹا اس کے ساتھ ہے جو کہ شو کر رہا ہے کہ یہ امیجنری ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو آنسر آیا زیڈ مائنس زیڈ بار اوور 2 کا یہ ایوٹا بی ہے. which is the imaginary part of z. تو یہ ہمارا سالو ہو گیا. تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جو پہلا پارٹ تھا
وہ ہمارا ریئل تھا اور دوسرا جو آیا ہے وہ امیجنری ہے. تو یہ دو پارٹ ہم سالو کر چکے ہیں. اب ہم اس کا تھرڈ پارٹ کرتے ہیں. تھرڈ پارٹ ہمارا اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پروو دیٹ زیڈ ناٹ کا اسکیئر یہ زیڈ انٹو زیڈ بار ہے. تو یہ ہم نے پروو کرنا ہے. ہم اس میں بھی سالو جب اس کو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ لیٹ زیڈ از اکول ٹو اے پلس ایوٹا بی. اب زیڈ اے پلس ایوٹا بی ہے اور اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیڈ بار جو ہے یہ اس کا کانجوگیٹ ہے. تو یہ اے مائنس ایوٹا بی بن جائے. تو اب زیڈ انٹو زیڈ بار اگر کرنا چاہیں تو یہ ہو جائے گا اے پلس ایوٹا بی انٹو اے مائنس ایوٹا. تو یہ آلریڈی ہم جانتے ہیں اے پلس ایوٹا بی اور اے مائنس ایوٹا بی یہ فارمولا ہے ہمارا اے اسکیئر مائنس بی اسکیئر کا. تو اے اس میں اے ہی ہے اور بی جو ہے وہ ایوٹا بی ہے. تو اس طرح ہماری ویلیو آئی اے اسکیئر مائنس اور ایوٹا اسکیئر بی اسکیئر. اور ایوٹا اسکیئر ہمیں پتہ ہے یہ مائنس ہوتا ہے تو مائنس بی اسکیئر اور ان کو ایڈ کریں تو اے اسکیئر پلس بی اسکیئر بن جائے. تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ زیڈ اور زیڈ بار جو ہے اس کا آنسر ہمارا اے اسکیئر پلس بی اسکیئر ہے. ہم اس کو ذرا تھوڑی سہولت کے لیے رائٹ ہینڈ سائڈ لکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رائٹ ہینڈ سائڈ ہماری اے اسکیئر پلس بی اسکیئر ہے. تو اب لیفٹ ہینڈ سائڈ بھی ہم کرتے ہیں. لیفٹ ہینڈ سائڈ یہ ہے ہماری. تو لیفٹ ہینڈ سائڈ اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے ماڈولس ویلیو جو ہوتی ہے وہ انڈر روٹ اے اسکیئر پلس بی اسکیئر ہوتی ہے. اور اگر ہم اس کا اسکیئر کریں تو یہ آپ یہیں اس کو ایسے کر لیں تو یہ آپ کا آ جائے گا اے اسکیئر پلس بی اسکیئر. تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ اور رائٹ ہینڈ سائڈ کا آنسر جو ہے وہ دونوں ایکول ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں پھر کہ زیڈ ناٹ کا اسکیئر از اکول ٹو زیڈ انٹو زیڈ بار. تو یہ ہمارا تھرڈ پارٹ اس کا سالو ہو. اس طریقے سے ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ کویسچن نمبر 4 کمپلیٹ ہو جاتا ہے. کویسچن نمبر 4 کے بعد ہم کویسچن نمبر 5 کرتے ہیں. کویسچن نمبر 5 اس سے تھوڑا ڈفرینٹ ہے. تو کویسچن نمبر 5 کو ہم سالو کرتے ہیں. یہ ہم تھوڑا الیبوریٹ کر دیتے ہیں تاکہ آنسر جو ہے وہ کلیئرلی سمجھ میں آ جائے کہ یہ آنسر ہے. اس کے بعد ہم کویسچن نمبر 5 کرتے ہیں. کویسچن نمبر 5 کی اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں. اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ Z1 is 2 plus ایوٹا اور Z2 is equal to 3 minus 2 ایوٹا اور Z3 بھی ہے. Z3 ہے 1 plus 3 ایوٹا. اب یہ تین ویلیو ہمیں دی گئی ہیں اور ہمیں کہا گیا ہے کہ ان تین ویلیو کی مدد سے آپ نے سالو کرنی ہے جو گیون اسٹیٹمنٹ ہے. اور وہ گیون اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ Z1 بار Z3 بار ڈیوائڈیڈ بائی Z2 in the form of A plus ایوٹا بی. اے پلس ایوٹا بی یعنی کہ کمپلیکس نمبر کی شیپ میں ہم نے اس کے آنسر کو لے کے آنا ہے. تو پہلے جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم سالو کرتے ہیں. اسٹیٹمنٹ اس کی ہے Z1 بار Z3 بار ڈیوائڈیڈ بائی Z2. تو ہم ڈائریکٹ اس کی ویلیو جو گیون ہے نا وہی ویلیو لیتے ہیں 2 پلس ایوٹا
और Z2 हमें दिया हुआ है 3 - 2 आयोटा और Z3 हमें दिया हुआ है 1 + 3 आयोटा। तो ये 3 वैल्यू हमारे पास हैं, तो इन तीनों का हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो पहले जो Z1 है, इसका कॉन्जुगेट अगर लेते हैं तो ये 2 + आयोटा कॉन्जुगेट 2 - आयोटा हो जाए। इसको एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट में Z2 एज इट इज़ ही है और Z3 जो है वो है 1 + 3 आयोटा और इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये 1 - 3 आयोटा हो जाता है। तो इस तरह ये 3 वैल्यू हमने लिख ली हैं। इन तीनों वैल्यूज़ को हम अपनी स्टेटमेंट का हिस्सा बनाते हैं, जो कि है Z1 बार Z3 बार डिवाइडेड बाई Z2। तो ये तमाम वैल्यूज़ जो हमारी आई हैं ये इसमें हम पुट कर देते हैं। तो Z1 बार आपके सामने है, जो कि 2 - आयोटा है और Z3 बार जो है वो 1 - 3 आयोटा है और Z2 हमारे पास है 3 - 2 आयोटा। तो ये तमाम वैल्यू हमने लिख ली हैं। तो इन तीनों वैल्यूज़ को हम अब सॉल्व करते हैं और इनका आंसर जो है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमें नज़र आ रहा है कि ये जो वैल्यू हैं हमारी, इनको पहले ऊपर वाली जो न्यूमरेटर की वैल्यू हैं, इनको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम मल्टीप्लाई कर का अमल बहुत सादा अमल है, जो कि ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 से अंदर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 द 2 - 3 2 द 6 आयोटा और अब माइनस आयोटा से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस और आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर तो 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ये। माइनस का -3 आयोटा स्क्वायर। ये माइनस आप ना लिखें इसमें क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है और ये 3 - 2 आयोटा। तो 2 - 6 आयोटा माइनस आयोटा प्लस -3 क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 होता है। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं कि 2 - 6 आयोटा -3 डिवाइडेड बाय 3 - 2 आयोटा हो गया। तो हम देख रहे हैं कि जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं इनको हमें अलग-अलग करना होता है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम मिला लेते हैं और इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमने देखा कि 2 - 3 जो है ना वो -1 होता है और ये दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं और इसलिए ये ऐड हो जाएंगी और 6 और 1 1 7 हो जाएगा। तो -7 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 - 2 आयोटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी हासिल हुई है, जो कि हमने मल्टीप्लिकेशन के अमल से हासिल की है। लेकिन अभी ये सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि a प्लस आयोटा b की शेप में अभी ये नहीं आया। तो फर्दर अमल जो है हमारा वो रैशनलाइजेशन है और रैशनलाइजेशन का अमल से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये 3 + 2 आयोटा से डिवाइड और 3 + 2 आयोटा से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो जो ऊपर वाली वैल्यू है वो ऊपर मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो वंस अगेन हम इसको मल्टीप्लाई के अमल को दोहराएंगे। ये दोनों वैल्यू हमने इकट्ठी कर ली हैं और ऊपर वाली भी दोनों वैल्यू हम इकट्ठी कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक दफ़ा फिर हमें मल्टीप्लिकेशन के अमल का सामना है। ये हम फर्दर इसको दोबारा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये नीचे वाली जो वैल्यू है ये आप ऑलरेडी इससे वाकिफ़ हैं कि ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाता है। तो इसको एज इट इज़ हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब ये -3 -1 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये -3 -2 आयोटा हो जाएगा और ये जो वैल्यू है हमारी -7 आयोटा है, ये 3 से मल्टीप्लाई जब होगा तो 7 3 ज़ा 21 -21 आयोटा हो जाएगा।
اور نیکسٹ جو ہے وہ ایوٹا اور ایوٹا اسکیئر مائنس ہوتا ہے، اور مائنس اور یہ مائنس مل کے یہ پلس ہو جائے گا اور 7 ٹو دا 14 ہو جائے گا، ڈیوائڈیڈ بائی 9 مائنس 4۔ مائنس 4 کیسے ہوا؟ 2 ریز پاور 2 از 4 اینڈ ایوٹا اسکیئر از -1، تو -4 یہ دونوں مل کے بن جاتا ہے۔ تو اس کو ہم فردر سولو کرتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو -13 ہے اس کے ساتھ ریئل پارٹ 14 ہے، اور اسی طرح امیجنری پارٹ ہمارا یہ ہے۔ تو یہ والی ویلیو مائنس اور مائنس مل کے پلس ہو جائے گی۔ تو اس طرح ہماری جو ویلیو ہمیں حاصل ہوئی ہے، 14 میں سے 3 آپ مائنس کر دیں تو یہ آپ کا 11 ہو جائے گا، اور 21 اور 2 جو ہے وہ ایڈ ہوں گے کیونکہ دونوں کی علامت ایک سی ہے، تو یہ بن جائے گا -23 ایوٹا، اور ڈیوائڈیڈ بائی ہو جائے گا 13، کیونکہ 9 اور +4 13 ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہماری جو ویلیو ہے وہ آئی ہے 11/13 -23/13 ایوٹا۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ اے پلس ایوٹا بی کی شیپ میں ہماری ویلیو آ گئی ہے۔ تو اس میں ہمارے سامنے ہے کہ جو ریئل پارٹ ہے اس کا یہ 11/13 ہے، اور جو امیجنری پارٹ ہے اس کا یہ -23/13 ہے۔ تو اس طرح یہ ہمارا اے پلس ایوٹا بی کی شیپ میں آ گیا ہے۔ تو یہی ہمارا آنسر ہے۔ تو اس آنسر کو ہم ہائی لائٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یہ ذہن میں رہے کہ ہم نے اس کو آنسر کو نکال لیا۔ تو یہ اس طریقے سے آپ کا یہ کویسچن نمبر 5 سالو ہو۔ اس کے بعد ہم کویسچن نمبر 6 پہ آ جاتے ہیں۔ کویسچن نمبر 6 جو ہے اس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی تقریباً اس سے ملتی ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں یہ فرق ہے کہ Z1 اور Z2 دی گئی ہیں اور ہمیں ایک ویلیو دی گئی ہے کہ اس کو ایویلویٹ کرنا ہے۔ تو دیکھیں کیا دیا گیا اور کیا ایویلویٹ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ہم ونس اگین اس کو ویلیو کو لکھ لیتے ہیں۔ تو کویسچن نمبر 6 اس میں کہا یہ گیا ہے کہ if Z1 is equal to 2 plus 7 iota and Z2 is equal to -5 plus 3 iota۔ یہ دو ویلیو دی گئی ہیں اور ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایویلویٹ کریں۔ ایویلویٹ کا مطلب ہے قیمت معلوم کریں۔ اس کی قیمت معلوم کریں 2Z1 -4Z2 ماڈولس کی۔ تو ہمیں یہ بات بڑی کلیئرلی نظر آ رہی ہے کہ جو ہم نے سولو کرنا ہے نا وہ ہمارا کیا ہے 2Z1 -4Z2۔ اس کو پہلے سولو کریں گے، لیکن اس سے پہلے کہ Z1 اور Z2 آپ کو جو گیون ہے ان کی ویلیو آپ پٹ کریں گے۔ Z1 آپ کو دیا گیا ہے 2 + 7 ایوٹا، اور اسی طرح Z2 آپ کو دیا ہے -5 + 3 ایوٹا۔ تو ان دونوں ویلیوز کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں۔ 2 × 2 4 + 7 × 2 14 ایوٹا۔ اب یہ 20 اور یہ 5 اور 4 ملٹیپلائی ہوگا تو مائنس اور مائنس پلس ہو جائیں گے، اور 5 4 دا 20، تو یہ +20، اور پھر یہ اس سے ملٹیپلائی یہ پلس مائنس مائنس، اور 14 اور 4 3 دا 12، تو -12 ایوٹا ہو جائے گا۔ تو اس طرح ہمیں جو ویلیو حاصل ہوئی وہ ہے 4 + 20 + 14 ایوٹا -12 ایوٹا۔ تو 4 اور 20 ملا کے 24 بن گیا، اور یہ جو ہے 2 ایوٹا بنے گا۔ 14 میں سے 12 نکالیں تو 2 ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو ویلیو آئی ہے وہ ہے 24 + 2 ایوٹا۔ تو یہ ہماری ویلیو جو ہے اس کو اصل میں ہم نے اب جو ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ یہ کیا ہے کہ 2Z1 -4Z2 کا ماڈولس لینا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے 24 کا اسکیئر + 2 کا اسکیئر نکالنا ہے۔
तो 24 का स्क्वायर हमें इल्म है 576 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इस तरह ये वैल्यू हमारी 580 बन गई। 580 को अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये 4 इंटू 145 बनता है। तो 4 बार आके 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 145 आ जाएगा। तो ये ही हमारा। अब इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से है और तकरीबन सेम क्वेश्चन बनता है। इसको हम देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तकरीबन वही तरीका अडॉप्ट किया जाएगा। इसमें हमें कहा गया है 3z1 प्लस 2z2 कॉन्जुगेट, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू जो z1 और z2 की दी गई है वो वही है जो कि पार्ट 1 में दी गई थी। तो उसी वैल्यू को हम दोबारा से ले लेते हैं। हमारे इल्म में है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो z1 ऑलरेडी गिवन है हमें, वो हम इसको वही z1 है पहले वाला 2 प्लस 7 होता, और z2 भी हमारे पास है -5 प्लस 3 होता। अच्छा, साथ साथ हम ये करते हैं कि z2 का कॉन्जुगेट भी ले लेते हैं ताकि हमारी वैल्यू जो है जब हम इसको सॉल्व करने लगें तो हमारे पास ऑलरेडी z2 बार मौजूद हो। तो -5 -3 होता हो जाए। अब हमने करना क्या है, पहले की तरह 3z1 प्लस 2z2 बार 3 इंटू z1 आपके पास था 2 प्लस 7 होता, और z2 कॉन्जुगेट आपने अभी ढूंढा था वो ये था। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 टू द 6 प्लस 7 3 द 21 होता। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -10 माइनस 3 टू द 6 होता। तो आपका 6 माइनस 10 प्लस 21 होता -6 होता हो गया। तो ये आपके इल्म में है 6 माइनस 10 -4 होता है, और इसी तरह 21 में से आपने 6 को माइनस कर देना है, तो ये आपका 15 हो जाएगा। तो ये प्लस का होगा क्योंकि बड़ी रकम इसमें 21 है जो कि पॉजिटिव है। तो आपकी जो वैल्यू है वो आई है -4 प्लस 15 होता। अब हमें क्योंकि ये इसका मॉडलस ढूंढना है तो इसी वैल्यू को हम मॉडलस में लिख लेते हैं। 3z1 प्लस 2z2 बार, ये मॉडलस है, और ये मॉडलस का ऑलरेडी आप जानते हैं -4 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर हमने कर लेना है। 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 इंटू 4 जो कि 16 होता है, और 15 का जो मॉडलस वैल्यू है वो 15 रेज़ पावर 2 जो कि 225 बनता है। तो इन दोनों को आप ऐड कर लें तो आपकी जो वैल्यू है वो 241 आ जाएगी। तो ये 241 ही आपका आंसर बनता है। तो इस तरीके से ये भी हमने सॉल्व कर, इसको आप आंसर बना लें। तो नेक्स्ट आपका जो पार्ट है वो इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट भी सेम यही चीज़ है। इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो थर्ड पार्ट करने के लिए वंस अगेन हम वैल्यू देखते हैं। हमें दिया गया है -7 z2 प्लस 2 z2 बार, यानी इसमें अब आप देख रहे हैं कि जो दोनों वैल्यू है ना वो z2 ही हैं। तो z2 हमारे पास मौजूद है -5 प्लस 3 होता। तो इसको हम -5 प्लस 2 होता बनाने के लिए वंस अगेन इसको लिख लेते हैं
we have Z2. Z2 क्या है आपका -5 + 3 iota। इस वैल्यू को हम इस्तेमाल करते हैं इस वैल्यू में -7Z2 + 2Z2 बार। तो हमने देखा एक वैल्यू जो नई आई है ना वो क्या है Z2 बार। तो Z2 बार का मतलब है जो वैल्यू Z2 की है इसका हमने कॉन्जुगेट ले लेना है। तो कॉन्जुगेट जब इसका लेंगे तो -5 - 3 iota हो जाएगा। तो Z2 बार हमने फाइंड कर लिया है। अब ये तमाम वैल्यू हम पुट कर देते हैं -7 × Z2। Z2 आपके इल्म में है -5 + 3 iota है। और इसी तरीके से Z2 बार है 2 × Z2 बार। Z2 बार आपके इल्म में है, अभी हमने कॉन्जुगेट फाइंड किया था वो ये है। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है और 7 को 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 हो जाएगा। और ये प्लस माइनस माइनस और 7 3 दा 21 तो -21 iota। इसी तरह ये -5 को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा और फिर 2 को -3 से iota से करेंगे तो -6 iota हो जाएगा। इसको अब आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेना है। इनको अलग अलग करने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। 35 में से 10 माइनस करें तो 25 हो जाता है। और इसी तरह ये दोनों वैल्यू क्योंकि सेम साइन की हैं या लिहाजा ये दोनों ऐड होंगी और 21 और 6 मिला के तो ये 27 बन जाएगा। तो -27 होता। तो ये आपकी वैल्यू है। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू का मॉडुलस ढूंढना है। तो 9 -7Z2 + 2Z2 बार ये फाइंड करते हैं। तो हमने देखा आपकी जो वैल्यू है वो है 25 का स्क्वायर प्लस -27 का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे। 25 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमारे पास आता है 625 और 27 का जब स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर की वजह से ये माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और ये 729 पर। इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप ऐड करते हैं तो ये 1354 बन जाए। तो यही आपका आंसर होगा। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं ताकि सहूलत रहे कि हमें पता हो कि यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन के पार्ट्स हमने 3 कर लिए हैं। तो फर्दर इसका एक पार्ट और भी है, ये भी हमें करना है और ये पार्ट थोड़ा सा कंपैरेटिवली उससे मुश्किल है क्योंकि इसमें क्यूब इन्वॉल्व हो गया है। तो क्यूब को करने के लिए वंस अगेन अब क्योंकि अभी तक आप जो फार्मूला यूज़ करते रहे हैं वो स्क्वायर तक था, लेकिन अब हमें क्यूब भी फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें ये कहा गया है कि हमें Z1 + Z2 होल क्यूब का मॉडुलस निकालना है। जबकि Z1 हमें दिया गया है 2 + 7 iota और Z2 हमारे पास है -5 + 3 iota। ये वही वैल्यू है जो पहले क्वेश्चन के शुरू में दी गई थी। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, Z1 और Z2 को ऐड करना है। Z1 + Z। तो ये हम इसको सॉल्व करते हैं। Z1 आपका है 2 + 7 iota प्लस -5 + 3 iota। इन दोनों को हम ऐड करते हैं। तो 2 + 7 iota ब्रैकेट खोल लेते हैं। रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। तो ये आपके पास ऐसे आ। तो 2 में से 5 को माइनस करें आप तो ये -3 हो जाता है और फिर ये 5 7 और 3 मिलाइए तो ये 10 iota हो जाता है। तो आपके पास जो वैल्यू आई है वो -3 + 10 iota है।
تو -3 + 10 आयोटा जो है ना, अब इसका ये क्या था Z1 + Z2। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि क्यूब का फार्मूला भी इसमें यूज़ हो रहा है, तो हमें चाहिए कि पहले हम इससे वाकिफ़ हो जाएँ। क्यूब का फार्मूला आपके इल्म में है a + b का अगर क्यूब खोलते हैं तो वो a³ + b³ + 3ab इंटू a + b होता है। तो इस वैल्यू को अगर हम देखें तो a जो है हमारा -3 है और b आपका 10 आयोटा है। तो ये दोनों वैल्यू को हम a और b के तौर पे इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो आपका जो अभी वैल्यू थी वो थी Z1 + Z2 इज़ इक्वल टू -3 + 10 आयोटा। तो इसका क्यूब ले लेते हैं, Z1 + Z2 होल क्यूब। तो इसका मतलब है -3 + 10 आयोटा का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। ये हमने इसको ले लिया है। अब हमारे इल्म में है 3 × 3 × 3 3 क्यूब बनता है, तो 3 दफ़ा आपको 3 को मल्टीप्लाई करना है और क्योंकि ऑड वैल्यू है पावर में इसलिए -20 के साथ रहेगा, तो 3 × 3 × 3 27 बनता है, तो ये -27 हो जाएगा। और इसी तरह जब 10 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 10 100, 100 × 10 इज़ 1000 और साथ ये आपका आयोटा क्यूब हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आएगी 1000 आयोटा क्यूब। और नेक्स्ट जो वैल्यू है इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 3 3 द 9 और 9 10 द 90, तो ये -90 आयोटा हो जाएगा और साथ ये वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो -27 + 1000, इसको आप आयोटा स्क्वायर और आयोटा कर लें ताकि ये हमारे थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी। जो आयोटा स्क्वायर है उसकी वैल्यू माइनस हम लगा सकेंगे, -1। तो इस तरह माइनस, अब इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 90 को 3 से आप मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का 270 हो जाएगा, 270 आयोटा। और जब माइनस प्लस माइनस ये 10 से जब करेंगे तो ये ज़ाहिर है 90 को 10 से मल्टीप्लाई किया है तो 900 हो जाएगा। और आयोटा आयोटा स्क्वायर होगा, और आयोटा स्क्वायर हमारे इल्म में है -1 होता है, एक माइनस वो हो जाएगा, एक माइनस ये हो जाएगा। तो दोनों को मिला के ये प्लस की वैल्यू बनेगी और ये 900 हो जाएगा। एक स्टेप इसका और करते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। यहाँ पे भी आप प्लस, इसकी वैल्यू -1 है, वो इसके साथ मिला लें, वो बार माइनस कर दें और इसको 1000 आयोटा लिख लें और इसको 270 आयोटा प्लस 900 कर दें। आपकी जो वैल्यू है रियल और इमेजिनरी, इनको आपने सेपरेट करना है और ये वैल्यू आपके सामने आ गई है सेपरेट होके। तो रियल और रियल को आपने ऐड कर लेना है और इमेजिनरी को भी आपने ऐड कर लेना है। तो आपके इल्म में है 900 में से 27 को आपने माइनस करना है, तो ये 873 बन जाता है। 873। और इसी तरह माइनस, ये जो -1000 है इसमें से 270 को आपने माइनस करना है। तो ऑब्वियसली माइनस क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ है इसलिए ये आपका -730 आयोटा हो जाए। तो ये आपकी वैल्यू है कौन सी, Z1 + Z2 होल क्यूब। अब इसका मॉडुलस भी ले लें आप, Z1 + Z2 का मॉडुलस, क्योंकि हमारा असल इशू ही यही था कि इसका मॉडुलस लेना है हमने। तो मॉडुलस की हम फार्मूला मॉडुलस का ऑलरेडी हमें पता है, वैल्यू पुट कर देते हैं। ये होता नहीं होता यहाँ पे।
873 का स्क्वायर निकालना है। 873 का स्क्वायर का मतलब है 873 मल्टीप्लाई बाई 873। तो ये वैल्यू ज़रा बड़ी बनती है, आप कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लें। मैंने इसको कैलकुलेट किया हुआ है, ये आपकी वैल्यू बनती है। तो आप भी कैलकुलेटर से करके देखिएगा। और 730 का जो स्क्वायर है वो भी 532,900। तो ये दोनों वैल्यू आपने कैलकुलेटर से करके भी देखनी है, ताकि आपका आंसर जो है वो आपके हिसाब से और आपकी समझ के मुताबिक बन जाए। तो ये दोनों वैल्यू को जब आप ऐड करते हैं तो ये वैल्यू बनती है ये। और इसको आप मज़ीद ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही आपका बुक के अंदर जो आंसर है ना वो दिया गया है। तो इस आंसर को भी आप हाईलाइट कर लें, ताकि ये भी आपके सामने आए। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने अभी सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने जो कुछ काम अभी किया है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो फर्दर अब ये है कि जब नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करेंगे। और ये अब तक जो काम किया है इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में मुझे ये कह सकते हैं, मैं दोबारा से इसको आपको समझा दूँगा। इस तो बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपने ये लेक्चर समझ लिया होगा। आपको चाहिए, अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक भी कीजिएगा।